سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب انہیں اونٹوں پر سوار کر کے 4 محافظوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ محافظ خاص طور پر منتخب کیے گئے تھے۔ اس انتخابات کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دوسری وجہ یہ کہ انہیں صلیبی کمانڈروں کے سامنے جانا تھا۔ وہ خوبرو اور وجیحہ تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی نہایت اچھی قسم کے بھیجے گئے تھے، مگر سب حیران تھے کہ سلطان ایوبی نے یہ فیاضی کیوں کی ہے۔ دشمن کو بخش دینا اس کا شیوا نہیں تھا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا تو اس نے اتنا ہی کہا، علی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بازی ہار گیا تو صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جو میں پہلے ہی اٹھا چکا ہوں کہ دشمن کے 3 جاسوس میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علی بن سفیان نے اس جوئے کی وضاحت چاہی، لیکن سلطان ایوبی نے اس پر بات ختم کر دی کہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ باقی سب تو حیران تھے، مگر رہا ہونے والے خوشی سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ خوشی صرف رہائی کی نہیں تھی، اصل خوشی اس راز کی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ قاہرہ شہر سے دور نکل گئے۔ ان کے اونٹ پہلو بہ پہلو جا رہے تھے، 2 محافظ آگے تھے اور 2 پیچھے۔ عالم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ چاروں اپنی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ عالم اور لڑکیاں ان کی زبان بڑی روانی سے بولتی تھیں، یہ انہیں خاص طور پر سکھائی گئی تھی۔ عالم نے لڑکیوں سے اپنی زبان میں کہا، خدائے یسوع مسیح نے معجزہ دکھایا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ پیار ہے اور اسے ہماری فتح منظور ہے۔ یہ سچے مذہب کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جیسے داناؤں کو خدا نے عقل کا ایسا اندھا کیا ہے کہ انتہائی خطرناک راز ہمارے کانوں میں ڈال کر ہمیں رہا کر دیا ہے۔ ہم اپنی فوج کو ان کا سارا منصوبہ بتائیں گے اور ہماری فوج ایوبی کو صحرا میں گھیر کر ختم کرے گی۔ اسے کرک تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے کمانڈر جنگ کو حملے تک محدود نہیں رکھیں گے۔ وہ مصر پر ضرور چڑھائی کریں گے۔ مصر فوجوں سے خالی ہوگا۔ یہ فتح بڑی آسان ہوگی۔ آپ عالم ہیں، تجربہ کار ہیں، ایک لڑکی نے کہا، مگر آپ جسے معجزہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ خطرہ یہ 4 محافظ ہے۔ کہیں آگے جا کر یہ ہمیں قتل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جلاد کے حوالے کرنے کی بجائے ہمیں ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ہمیں جی بھر کے خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے، اور ہم نہتے ہیں۔ عالم نے یوں کہا جیسے اس کے ذہن سے ساری خوش فہمیاں نکل گئی ہوں۔ اس نے کہا، تم نے جو کہا ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ کوئی حکمران اپنے دشمن کے جاسوس کو بخش نہیں سکتا، اور مسلمان اس قدر جنس پرست ہیں کہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں راتوں کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ دوسری لڑکی نے کہا، رات کو یہ سو جائیں تو انہیں انہی کے ہتھیاروں سے ختم کر دیا جائے۔ ذرا ہمت کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ہمت کرنی پڑے گی۔ عالم نے کہا، یہ کام آج ہی رات ہو جائے تو اچھا ہے۔ صبح تک ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ 2 محافظ آگے اور 2 پیچھے اپنی گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ 2 اتنی دلکش لڑکیاں ان کی تحویل میں ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک نے عالم سے کہا کہ ہم ابھی رکیں گے نہیں، رات کا پہلا پہر چلتے گزاریں گے۔ اور وہ چلتے گئے اور صحرا کی رات تاریک ہوتی گئی۔ عالم اور لڑکیاں اونٹوں کو قریب کر کے محافظوں کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی۔
बहुत देर बाद एक सरसब्ज जगह आ गई। मुहाफिज रुक गए और वही पड़ाव किया। उन्होंने देखा कि 3 मुहाफिज लेट गए थे और एक टहल रहा था। आलम लड़कियों के साथ मुहाफिजों से कुछ दूर लेटा इन तीनों की नजरें मुहाफिजों पर थी। वो चौथे मुहाफिज को देखते रहे। वो पड़ाव के इर्द गिर्द टहलता रहा। एक खटका सा हुआ, वो दौड़कर उधर गया और अच्छी तरह देखभाल करके आ गया। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। इसने अपने एक और साथी को जगाया और खुद उसकी जगह लेट गया। जो जागा था वो पड़ाव के इर्द गिर्द टहलने लगा। कभी जानवरों के पास जाकर इन्हें देखता और कभी सोए हुए इंसानों को देखता। आलम ने लड़कियों से कहा, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये कम वक्त पहरा दे रहे हैं, जो होगा वो होके रहेगा। सो जाओ। और वो सो गए। रात गुजर गई। सुबह अभी धुंधली थी जब मुहाफिजों ने इन्हें जगाया और रवाना होने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो फिर इसी तरतीब में चले जा रहे थे जिसमें एक रोज पहले थे। 3 ऊंट पहलू ब पहलू, 2 मुहाफिज आगे और 2 ऊंटों के पीछे। वो एक बार फिर लड़कियों से लातल्लक हो गए। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की कि जिससे शक होता कि ये लोग उबाच या बदमाश हैं। सूरज उभरता आया। फिर ये काफिला टीलों के इलाकों में दाखिल हो गया। मट्टी और रेत की पहाड़ियां मनहनी सी दीवारों की तरह खड़ी थीं। इनमें गलियां सी थीं और इन पर पहाड़ों का साया था। लड़कियां डरने लगीं। डर इनके चेहरे से जाहिर हो रहा था। इनकी निगाह में यह जगह जुर्म और कत्ल वगैरह के लिए मौजूद थी, मगर मुहाफिज इनकी तरफ देख नहीं रहे थे। इनसे कहो कि हमारे साथ बातें करें। एक लड़की ने आलम से कहा कि इनकी खामोशी और लातल्लकी मुझे डरा रही है। इन्हें कहो कि हमें मारना चाहते हैं तो फौरन मार दे, मैं मौत का इंतजार नहीं कर सकती। आलम खामोश रहा। वो लड़कियों की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो तीनों इन मुहाफिजों के रहमो करम पर थे। सूरज सर पर आ गया तो वो इन टीलों के अंदर ऐसी जगह रुक गए जहां रेत की सिलों वाले टीले थे और ऊपर जाकर आगे को झुके हुए थे। इनके साए में उन्होंने क़याम किया। खाने के दौरान आलम ने मुहाफिजों से पूछा, तुम लोग हमारे साथ बातें क्यों नहीं करते? जो बातें हमारे फ़र्ज में शामिल नहीं वो हम नहीं किया करते। मुहाफिजों के कमांडर ने जवाब दिया और पूछा, अगर तुम लोग कोई ख़ास बात करना चाहते हो तो हम सुनेंगे और जवाब देंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि हम कौन हैं? आलम ने पूछा। तुम तीनों जासूस हो, मुहाफिज ने जवाब दिया। लड़कियां बदकार हैं। ये इन आदमियों के इस्तेमाल के लिए है जिन्होंने तुम लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हो। अमीर मिस्र, अल्लाह इनके नेक इरादों में बरकत दे, ने हमें मालूम नहीं क्यों बख्श दिया। हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें किला शोबक में छोड़ आए। तुम अमानत हो। तुमने ये बात मुझसे क्यों पूछी है? तुम्हारे साथ बातें करने को जी चाह रहा है। आलम ने जवाब दिया, इतना लंबा सफ़र इस लातल्लक की और बेगानगी से बड़ा घटन हो रहा है। हमारे साथ बातें करते चलो। और हम सफ़र हैं, मुहाफिज ने कहा, लेकिन हमारी मंजिलें जुदा हैं। 2 रोज़ बाद हम जुदा हो जाएंगे। आलिम जासूस ने जैसे मुहाफिज का जवाब सुना ही ना हो। इसकी आंखें किसी दूर की चीज़ को देख रही थी। वह सहरा से अच्छी तरह वाकिफ था, सहरा के ख़तरों से वाकिफ था। इसकी आंखें हैरत और गालबन डर से फटी जा रही थी। मुहाफिज ने इस तरफ देखा जिस तरफ आलम देख रहा था। मुहाफिज की भी आंखें खुल गईं। कोई 200 गज दूर एक बुलंद जगह 2 ऊंट खड़े थे। इन पर 2 आदमी सवार थे जिनके चेहरों और सिरों पर पगड़ियां लिपटी हुई थी। ऊँटों की टांगें नजर नहीं आ रही थी। वो बुलंदी के पीछे थे।
सवार खामोशी से खड़े मुहाफिजों और जासूसों के काफिले को देख रहे थे। इनका अंदाज और लिबास बता रहा था कि वो कौन है। मुहाफिजों के कमांडर ने आलम से पूछा। सहराई डाकू। आलम ने जवाब दिया, मालूम नहीं कितने होंगे, देखा जाएगा। मुहाफिज ने कहा। इसने उठते हुए अपने एक साथी से कहा, मेरे साथ आओ। वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर डाकुओं की तरफ चले गए। इनके पास तलवारों के अलावा बर्छियां भी थीं। इन्हें अपनी तरफ आता देखकर शुतर सवार बुलंदी के पीछे गायब हो गए। वो मुहाफिज जो पीछे रह गए थे करीब के टीले पर चढ़ गए। आलम ने लड़कियों से कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारा खदशा सही साबित हो रहा है। ये डाकू नहीं, ये सलाहुद्दीन अयूबी के भेजे हुए आदमी मालूम होते हैं, वरना ये मुहाफिज इतनी दलेरी से इनकी तरफ न चले जाते। अयूबी तुम दोनों को बहुत ज्यादा जलील कराना चाहता है। मेरे लिए तो मौत लिखी हुई है, तुम्हें बड़ी खौफनाक सजा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम आज़ाद नहीं, एक लड़की ने कहा। हम अभी तक कैदी हैं, यही मालूम होता है, दूसरी लड़की ने कहा। दोनों मुहाफिज वापस आ गए। इनके साथी और जासूस इनके गिर्द जमा हो गए। मुहाफिजों के कमांडर जिसका नाम हदीद था इन्हें बताने लगा, वो सराई कजाक हैं, हम इनसे मिलाए हैं, इनकी तादाद मालूम नहीं हो सकी। ये दोनों जो हमें देख रहे थे कहते हैं कि सही सुबह से हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम फौज के आदमी हो और मुसलमान मालूम होते हो, लेकिन ये लड़कियां मुसलमान नहीं। ये दोनों लड़कियां हमारे हवाले कर दो, हम इन्हें तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैंने इन्हें कहा है कि ये लड़कियां किसी भी मज़हब की हों, हमारे पास अमानत है, हम जीते जी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो मुझे समझाने की कोशिश करते रहे कि हम अपनी जानें ज़ाया न करें। मैंने कह आया हूँ कि पहले हमारी जानें ज़ाया करो, फिर लड़कियों को ले जाना। इसने आलम और लड़कियों से पूछा, तुम कोई हथियार इस्तेमाल कर सकते हो? इन लड़कियों को हर एक हथियार चलाने की तरबियत दी गई है। आलम ने कहा, तुम्हारे पास बर्छियाँ हैं, तलवारें भी हैं और तीर कमान भी। इनमें से एक एक हथियार हमें दे दो। अभी नहीं, हदीद ने सोचकर कहा, मैं कबल इस वक्त तुम्हें हथियार नहीं दे सकता। अगर डाकुओं से टक्कर हो गई तो उस वक्त दे दूंगा। हम इस इलाके से फौरन निकल जाना चाहिए। इनसे घोड़ों और ऊँटों पर लड़ाई होगी तो ये इलाका मौजू नहीं, घोड़े घुमा फिरा कर लड़ने के लिए जगह खराब है। वो फौरन वहां से चल पड़े। मुहाफिज ने कमाने हाथों में ले ली और तुर्कश खोल लिए। हदीद आगे था। इसके साथी ने कहा, इन जासूसों को हथियार देना ठीक नहीं, आखिर हमारे दुश्मन हैं, हो सकता है कि डाकुओं के साथ मिलकर हमें मार डालें। आलम लड़कियों से कह रहा था कि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं, उन्होंने हमें हथियार देने से इनकार कर दिया है। डाकू इनके अपने आदमी हैं, ये तुम दोनों को इनके हवाले कर देंगे और मुझे मरवा देंगे। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और दोनों पर डाकुओं का डर सवार हो गया। हदीद ने अपने मुआफिसों से कह दिया था कि कोई नकाबपोश नजर आए तो मुझे बताए बगैर इस पर तीर चला दो। इनके साथ टक्कर जरूर होगी, देखना यह है कि कब होगी और कहाँ होगी। वो तेज रफ्तारी से चलते गए। घोड़ों और ऊँटों को आराम, चारा और पानी मिलता रहा था, इसलिए थकन का इन पर कोई असर नहीं था। टीलों का इलाका बहुत दूर चला गया था। कई जगहों पर यह काफिला ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान आ जाता। हदीद को डर ये था कि डाकू ऊपर से तीर न बरसा दे। इसने घोड़ों को एड़ लगाने को कहा और जासूसों से कहा कि वो भी ऊँटों को घोड़ों की रफ्तार पर कर ले और ऊपर को देखते रहें। वो इस इलाके से निकल गए। कोई डाकू नजर नहीं आया। सूरज नीचे जाने लगा था। एक बार दूर दो ऊँट उसी सिमत पर जाते नजर आए जिधर ये काफिला जा रहा था। काफिला चलता रहा।
रास्ते में एक जगह पानी मिल गया। उन्होंने जानवरों को पिलाया, खुद भी पिया और चल पड़े। सूरज नीचे जाता रहा और उफक के पीछे चला गया। शाम तारीख हुई तो हदीद ने काफले को रोक लिया। कहने लगा, ये जगह लड़ाई के लिए अच्छी है क्योंकि इर्द गिर्द कोई रुकावट नहीं। इसने घोड़ों की ज़ेनें खोली नहीं ताकि ज़रूरत के वक्त घोड़े तैयार मिले। ऊँटों को बिठा दिया गया। खाना खाकर हदीद ने लड़कियों को अपना दरमियान लटाया और इन्हें कहा कि वो होशियार रहें। मुहाफिजों से कहा कि वो कमाने तैयार रखें, सोए नहीं लेटे रहें। इसे यकीन था कि रात को हमला ज़रूर होगा। जारी है।